Assalamu alaikum dear students. Welcome to Introduction to Bioinformatics class. This is our lecture 12. So today we will discuss about neighbor joining method. Okay, first we will look into the recap. Previously we have done an algorithm that is UPGMA, which is abbreviated as unweighted pair group with arithmetic mean. जिसमें हम जो algorithm, basically this algorithm is constructing a phylogenetic tree, and for this construction we need two pair groups which are closely related, and then we use to do arithmetic mean. Okay, that we have done previously. Okay, and today's topic is neighbor joining, and which is the distance-based method, as UPGM is also the distance-based method. So what is neighbor joining? Neighbor joining is a clustering approach for the reconstruction of the phylogenetic trees. जैसे कि UPGM में it was also the was also an approach for the reconstruction of phylogenetic tree. In the same way, neighbor joining is also the is constructing the phylogenetic trees. So as we have studied, there are two main types of tree construction, that is neighbor joining, that is distance based method, and there is a character based method. So we are only doing distance based method, which is first we have done UPGMA, and now we are doing neighbor joining, and that is a reconstruction of phylogenetic trees. So this idea was given by the Saitu and me in 1987, and first this idea was given for the to find the pair of leaves that are close to each other but far from the other leaves. ये आइडिया बेसिकली जो हम phylogenetic tree में कंस्ट्रक्ट करते हैं दो लीव्स के लिए, पेयर ऑफ लीव्स के लिए जो मोर क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, और बाकी लीव्स से उनका जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. दैट मीन्स कि बाकी लीव्स मस्ट बी सम हैविंग आउट ग्रुप्स. ओके, does not have a molecular clock assumption. Okay, we know the molecular clock assumption is basically that is a theory of evolutionary time. जैसे कि हमने UPGMA में पढ़ा था कि that is assumption divergence of sequences is assumed to occur at a constant rate, like distance to root is equal. जैसे कि this is our root and these are the end nodes or leaves. ठीक है, अब हर एंड लीव का अगर हम रूट तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो इट विल बी constantly equal. But in the neighbor joining case, if we construct an unrooted guide tree from a distance metric, we do not assume constant rate of evolution. सबसे पहले तो जैसे कि UPGM में है, that is the rooted tree. Neighbor joining is the unrooted tree. ठीक है, both have the distance based method, but this is drawing a rooted tree, and neighbor joining is drawing the unrooted guide tree. And we do not, so that in this case we do not assume a constant rate of evolution. यहाँ पर आपकी जो leaves है and nodes, अगर आप इनको leaves में pictorial picture जो ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि अगर आप इसका कैलकुलेशन करें रूट से लेकर एंड नोड्स का, तो दिस विल नॉट बी इक्वल. So this is neighbor joining method, as we know that this is the distance based method. So one of the important concept in NJ method is neighbors. ठीक है, these are the end leaves, and these are neighbors to each other. Why? Because both are sharing the same parent, node 1, okay, which are defined as two taxas that are connected by a single node in an unrooted tree. So these two nodes are defining the two taxas which are closely related, and they are sharing the one node or one parent node in an unrooted tree. Okay, the input is the n number of taxas. Input आप की n number of taxas हो सकती है, because as we have studied in the UPGM में,
which takes less number of sequences as compared to the neighbor joining phylogenetic tree. ठीक है? So repeatedly, like it works for the huge number of sequences. Repeatedly join pairs of leaves by rules of numerical optimization. जो आपने यहाँ पर ये लीव्स देखे हैं, बेसिकली हम पेयर्स को यूज़ करते हैं एंड देन उस पर कुछ न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन रूल्स को यूज़ करते हुए, मेथड्स को यूज़ करते हुए हम उनकी कैलकुलेशन करते हैं. और जो हमारे पास जो इनपुट मैट्रिक्स आती है दैट गेट्स श्रिंक्स द डिस्टेंस मैट्रिक्स बाय कंसीडरिंग टू नेबर्स एज वन नोड. यहाँ पर अब हम इसको वन नोड कहेंगे बिकॉज दिस इज द क्लस्टर. जब हम इन मेथड्स को कैलकुलेट करेंगे तो देन यू विल नो हाउ वी आर यूजिंग द न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है? एंड द आउटपुट इज एन अनरूटेड ट्री विद द ब्रांच लेंथ. जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि नेबर जॉइनिंग जो है वो अनरूटेड ट्री ड्रॉ करता है. ओके, दिस इज एन एल्गोरिथम. फॉर एग्जांपल टर्मिनल नोड आई कंप्यूट. हम जितनी भी टर्मिनल नोड्स होंगी उनके लिए आर ऑफ आई कैलकुलेट करेंगे और आर ऑफ आई हम जितनी भी नोड्स है दैट इफ इट इज 5 j इज इक्वल टू 1 से लेकर हम 5 तक उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. ठीक है? एंड देन नंबर 2 इंस्ट्रक्शन इज दैट फॉर ऑल पेयर्स ऑफ टर्मिनल नोड्स कंप्यूट. जैसे कि हमारे पास इनपुट मैट्रिक्स से हमने टर्मिनल नोड्स का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया. नाउ सेकंड थिंग इज दैट we will use two pairs of terminal nodes to compute the distance matrix. ठीक है? यहाँ पर हम distance matrix calculate करेंगे and n is the number of nodes and let ij be the pairs with the minimal value of mij. अब जो हमारे पास m of ij में हमारे पास जो minimal pair का distance matrix में जो हमारे पास आएगा उसको हम choose कर लेंगे for the further step. Okay, number 3 is join ij to new terminal node that is u. जो हमने ij बेसिकली अगर हमारे पास a b c d क्लस्टर से और हमारे पास i a b जो है वो हमारा क्लस्टर है. ठीक है? i हमारा a हो जाएगा और j हमारा b होगा to the new terminal node और u हम क्लस्टर को कह रहे हैं जो कि a और b है. The branch lengths from u to ij are. अब a और b का जो ब्रांच लेंथ है यू बेसिकली पेरेंट नोड है वो हम कैलकुलेट करेंगे. सो वी ऑफ आई यू मीन्स यू की जो यहाँ क्लस्टर है बेसिकली हम अगर ए की जो लेंथ है जो हमारे पास आई में ए जो है उसकी लेंथ हम यू बेसिकली जो आपका पेरेंट नोड है उसका हम डिस्टेंस जब कैलकुलेट करेंगे एक u का एक के साथ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये फार्मूला है और अगर हम u का b के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला है. obtain the distance from u to another terminal node by k. अब हम इसी तरह से u के डिस्टेंस हम बाकी टर्मिनल नोड्स के लिए भी इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे. सो डिलीट आई जे फ्रॉम द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हमने आई और जे की ब्रांच लेंथ और पेरेंट नोड हम की लेंथ हमने जब कैलकुलेट कर लिया तो हम उसको डिलीट कर देंगे. इफ देयर आर मोर देन 2 क्लस्टर्स लेफ्ट देन रिपीट द होल प्रोसेस. अगर आपके पास दो से या दो और दो से ज़्यादा क्लस्टर्स बच जाएं तो हम उसके लिए जो सारा प्रोसेस है वो स्टेप 1 से स्टेप 5 तक रिपीट करेंगे. सो आइए अब हम यहाँ पर एग्जांपल से हम जो है इस एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करेंगे. दिस इज एन इनपुट डिस्टेंस मैट्रिक्स है और जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कितनी नोड्स हैं 1 2 and 3 and 4 नोड्स हैं और हम पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमने जो है कैलकुलेशन करनी है हर नोड का बाकी नोड्स के साथ डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे और हम एक और मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे. ठीक है? यहाँ पर ये जो आपको एक अनगाइडेड ट्री नज़र आ रहा है दैट इज बेसिकली हमें ए का और बी सी और डी का डिस्टेंस हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि वो किस नोड से
किस डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो जब हम एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे तो हम वी विल बी एबल टू ड्रॉ द एग्जैक्ट नेबर जॉइनिंग ट्री। ओके, यहाँ पर आपका है फर्स्ट राउंड। स्टेप 1 में क्या आपने करना था, जैसे कि हमारे पास स्टेप 1 क्या था, यू हैव टू कैलकुलेट द टर्मिनल नोड्स, उनका डिस्टेंस आर ऑफ आई कैलकुलेट करना है। सो आर ऑफ आई इज वेरी सिंपल, as it is here you have to calculate the distance of RA, RB, RC and RD. like RA का distance आपने calculate करना है A का B के साथ क्या distance है, और A का C के साथ, A का D के साथ, इनको आपने प्लस करना है। जैसे कि आपके पास A का distance B के साथ 3 है, A का C के साथ 4 है और A का D के साथ 5 है। सो दिस इज 3 4 5 एंड इक्वल्स टू 12। अब RB का कैलकुलेशन करेंगे। RB मीन्स कि B का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपने A के साथ, B का C के साथ एंड B का D के साथ, ठीक है। दैट इज 3 + 5 + 4 एंड इक्वल्स टू 12। इन द सेम वे वी विल कैलकुलेट द RC एंड RD। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 0 भी हमारे पास लिखा हुआ है। दैट इज लाइक 0 is basically we cannot we don't have any branch length from A to A। अगर A to A होगा तो वो loop होगा, और we have no any loop in our tree, so that is why we have written there 0। okay, after calculating R of I you have the values here। R of I means यहाँ पर जो आपकी R of A की वैल्यू है वो that is 12, R of B की आपके पास वैल्यू है 12, R of C 16, R of D 16। okay, as you have calculated you have done with the step 1, now this is the step 2। this is an empty input empty matrix for the m of ij। आपने distance matrix calculate करनी है। okay, m of distance matrix की जो के लिए जो फार्मूला है वो आपके पास ये है, m of ij is equals to d of ij minus r of I plus r of j divided by n minus 2। यहाँ पर आप जो है सपोज करें आपके पास here like I is equals to a, I में आपके पास a है और j में आपके पास b है, ठीक है। now you have to calculate the distance of m of ab। ओके, इसके लिए फार्मूला आप इसको फॉलो करें। d of i j में आपके पास i आपका a है और j आपका b है, ठीक है। इसको आप माइनस करेंगे, r of a plus r of b डिवाइडेड बाय n minus 2। अब डिस्टेंस ऑफ a b आपके पास कहाँ है, वो आप इनपुट मैट्रिक्स में से वैल्यू यूज करेंगे, विच इज आपकी इनपुट मैट्रिक्स में से जो a और b की वैल्यू है दैट इज 3। देन यू विल यूज दिस 3 as the d of AB is equals to 3, so you have written here 3। और R of A और R of B की वैल्यू आपके पास 12 + 12 है, ठीक है। 12 + 12 is equals to 24 and n जो है आपके पास 4 nodes are 1 2 3 and 4, 4 minus 2 is equals to 2, so when you will calculate your answer will be -9, so you have written here -9। अब जो आपके पास x और a b है, बेसिकली दिस इज द डिस्टेंस मैट्रिक्स, और a और b की जो आपने डिस्टेंस मैट्रिक्स में जो वैल्यू कैलकुलेट किया दैट इज -9। इसी तरह से आप कैलकुलेट करेंगे ac के लिए और ad के लिए, इसी तरह से bc के लिए और bd के लिए एंड देन c to d। उसके लिए अगर आप वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो m of ac की वैल्यू आएगी आपके पास -10, m of bd की भी bd की वैल्यू भी आपके पास -10 आएगी। इसी तरह से m of ad आपके पास -9 है और m of bc is equals to -9। इसी तरह से m of cd is equals to -9। so we have discussed how we can calculate, this is the formula, we will follow this। जैसे कि आपके पास i की वैल्यू आपके पास a है और j की वैल्यू आपके पास b है, इसी तरह से जब आप बाकी के लिए यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका i a है, यहाँ पर आपका c है, इसी तरह से m of i m of j। इसी तरीके से आप इस फार्मूला को यूज करते हुए सारी एम्प्टी वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपलेस्ट फार्मूला टू यूज। ओके,
अब हमारे पास डिस्टेंस मैट्रिक्स जो है वो सेकंड स्टेप में कंप्लीट हो जाती है. नाउ द टर्म वी हैव the smallest value is -10, which is comparatively the smallest value from -9. -9 से -10. -10 जो है वो smallest value. So we will pick, as we have we know that m of AC and m of BD are both having same values like -10. So we will choose one of these, either AC or either BD. For this example, we will choose AC. Okay, this is the first round and step 3. Calculate the branch length from the U to IJ. U means आपकी जो node 1 है और उसका जो I और J की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे. आपके पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज AC जो हमने पिक किया है, उसमें हम अपनी वैल्यूज इंसर्ट करेंगे. U आपका क्लस्टर है और I बेसिकली आपका A है. और यहाँ पर D of I J AC डिवाइडेड बाय 2 प्लस R of I आपका है R माइनस आर जे ए और आर ए माइनस आर सी डिवाइडेड बाय 2n-4. ठीक है. ए की नोड 1 के साथ जो आपकी ब्रांच लेंथ आप कैलकुलेट करेंगे उसके लिए फॉर्मूला ये है. और जो सी के लिए सी की ब्रांच लेंथ आप नोड 1 से लेकर सी की ब्रांच लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला ये है. ठीक है. So we will just put it down the values like v of I u means हम a की लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं u से. ठीक है. तो उसके लिए फॉर्मूला ये है. आपके पास d of I j है तो I में आपकी वैल्यू a है और j में आपकी वैल्यू c है डिवाइडेड बाय 2 प्लस r of a माइनस r of c 2n-4. n आपका नंबर ऑफ नोड्स है, दैट इज 4. 4 into 2 minus 4 equals to 4. और d of AC की वैल्यू जो है आप इनपुट मैट्रिक्स से लेंगे विच इज d of AC is 4. So your value will be 4 and divided by 2. तो आपका जो वैल्यू है वो आएगी 2. So 2 plus and your answer will be 1 for the branch length of A. ठीक है. अब इसी तरह से आप सी की ब्रांच लेंथ भी कैलकुलेट कर लेंगे. इन जे योर वैल्यू विल बी सी. फॉर सी branch length we will calculate with this formula. So v of j u is equals to c equals to d of a c minus a equals to, और आपकी जो कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज 3. सो आप देखिए x बेसिकली आपका u, आप u के साथ लिख लें या x के साथ लिख लें या नोड 1 लिख लें. ठीक है. सो आपका जो x से a तक का डिस्टेंस है दैट इज a इज इक्वल्स टू 1 और x से c तक का डिस्टेंस जो है वो c इज इक्वल्स टू 3. यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप एंड नोड्स या आपकी जो टर्मिनल नोड्स हैं उनको आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और ब्रांच लेंथ को आप स्मॉल लेटर्स के साथ डिनोट करते हैं. ठीक है. यहाँ पे आपके पास a इज इक्वल्स टू 1 और c इज इक्वल्स टू 3. So this is the step 4. Now what we will do, obtain the distance from the u to another terminal node k by this formula. अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो u है बेसिकली जो हमारा AC क्लस्टर है उसका डिस्टेंस हमने बाकी नोड्स के साथ भी कैलकुलेट करना है. ठीक है. उसके लिए u आपका क्लस्टर है विच इज AC और k आपका बाकी नोड्स है दैट इज b एंड d. ठीक है. पहले आप AC का कैलकुलेट करेंगे b के साथ और AC का कैलकुलेट करेंगे देन d के साथ और BD की वैल्यू आप एज इट इज इनपुट मैट्रिक्स से कॉपी करेंगे which is BD is 4. So you will write 4 as it is in this field. Okay, अब हमने क्या करना है, AC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सॉरी AC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसके लिए जो फार्मूला है हमारे पास वो ये है. और
हमारे पास जो न्यू डिस्टेंसेस कैलकुलेट होंगे, बेसिकली अब हम जो है ए सी जो हमने कैलकुलेट कर लिया एक क्लस्टर को, उसको हम डिलीट करेंगे, बाकी नोड्स तक का जो है हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। न्यू डिस्टेंस में हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी वो हम देख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए सी का पहले हम बी के साथ कैलकुलेट करेंगे, देन ए सी का डी के साथ, ठीक है, ए सी का बी के साथ एंड देन डी के साथ, ठीक है। और इसके लिए जो फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं वो है, आप देख लें यहाँ पर, यू जो है हमारा बेसिकली क्लस्टर था ए सी, और के जो है वो रिमेनिंग नोड्स है विच इज बी एंड डी। इसको हम इस फार्मूला को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो दैट इज डी ऑफ ए बी प्लस डी ऑफ सी बी माइनस डी ऑफ ए सी डिवाइडेड बाय 2 विच इज 3 प्लस 5 प्लस माइनस 4। ये सारी वैल्यूज आप जो है इनपुट मैट्रिक्स से गेट करेंगे, ठीक है। ए सी की वैल्यू आपके पास जो है okay, we were talking about कि distance of AB, distance of CB and distance of AC की values जो है आप जो first input matrix थी वहाँ से आप इनकी values जो है वो लिखेंगे, that is 3 plus 5 plus sorry minus 4, ठीक है। AC जो आपका cluster था, और distance of AB और distance of CB minus डिस्टेंस ऑफ ए सी, और जिसमें आपकी वैल्यूज है 3 प्लस 5 माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय 2, और इसका जो रिजल्ट है वो 2 आता है। और डिस्टेंस ऑफ ए सी और डी के साथ जो आपका इसी तरह फार्मूला को आप एक्सपैंड करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए डी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी डी माइनस डिस्टेंस ऑफ ए सी, ठीक है। और आप इसकी वैल्यूज जब आप इंसर्ट करते हैं तो आपका रिजल्ट 4 आता है। सो आपका ए सी के साथ जो बी और डी का डिस्टेंस है दैट इज 2 एंड 4, एंड ये वाला 4 जो है आपने एज इट इज बी ऑफ डी जो है वो इनपुट मैट्रिक्स से एज इट इज लिख लेना है। नाउ डिलीट ए सी जो कि हमने क्लस्टर की वैल्यूज और ब्रांच लाइन जो हमने कैलकुलेट कर ली है, एंड यू हैव टू डिलीट दिस ए सी फ्रॉम द सेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड डू द नेक्स्ट आइट्रेशन। ओके, अब हमारे पास बेसिकली ए सी में हमारी जो न्यू डेटा डिस्टेंस मैट्रिक्स है वो ये है, जिसमें हमारे पास 2 डिस्टेंस ऑफ ए सी, डिस्टेंस ऑफ ए डी एंड डिस्टेंस ऑफ बी डी रह गया है। सो नाउ वी विल do this now we will repeat all the steps from the first step. Okay, this is the second round and this is our second cycle, and step 1 we have this input. Now we will calculate the r of I, और इसके लिए आपको फार्मूला याद है, वही मेथड है हमारे पास, सेम फार्मूला इज दैट इज r of I। ये हमारे पास r of I का फार्मूला है, हम जस्ट क्या करेंगे, सारी वैल्यूज के लिए जो है r of I कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली ए सी का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बी के साथ, ए सी का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे डी के साथ। तो ए सी की जो आर ऑफ आई में ए सी है वो होगा 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6। इसी तरह से बी का ए सी के साथ और इसी तरह से डी बी का डी के साथ, तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे 2 प्लस 4 6। इसी तरह से डी का बी के साथ एंड डी का ए सी के साथ, तो आपके पास 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8, ठीक है, 6 and 6 and 8। Okay, this is your step 2. Now you have to calculate the distance matrix of terminal nodes. उसके लिए वही same method है, m of I j calculate करेंगे आप, वही same method है, वही same formula है, which is 2 minus 12 equals to 10 for m of I j, which is a c and b। जो empty matrix है basically आपने इनके लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और ए सी को आपने डिलीट कर दिया था, इस वजह से आप इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। सो दैट इज व्हाई यू हैव रिटन हियर 0। ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द ए सी टू ए डी, ठीक है, एंड इन द सेम वे यू हैव टू कैलकुलेट द बी डी, सॉरी, you have to calculate the distance of B and D with the same formula. Okay, now this is step 3. Again you have to calculate the edges of
edges of the cluster nodes. So like